तो बच्चों अब हम बात कर रहे हैं हमारे ग्रुप नंबर 18, द लास्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, पी ब्लॉक, that is noble gases, also known as inert gases. So helium is the first member of group 18. This group 18 is also known as zero group. It consists of 6 elements, that is helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. Zero group occupy the intermediate position between the elements of 17th and 1st A group. These are collectively known as inactive gases or inert gases. Now why these gases are known as inert gases? As they have fulfilled configuration. इनका configuration क्या है? Fulfilled है, that is NS2NP6. तो they neither want to gain electron and neither want to लूज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये क्या है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर कर बैठे हुए हैं, इसलिए ये केमिकली क्या है, अनरिएक्टिव है. दैट इज वाई दीज आर नोन एज इनर्ट गैसेस. इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, इनर्ट गैस कहा जाता है. हाउएवर these are now called as noble gases, as some compound of these gases have been obtained under the specific condition, under the noble conditions. Electronic configuration, the general electronic configuration is NS2NP6. Helium is 1s2, neon is 2s2 2p6, krypton is 4s2 4p6, xenon is 5s2 5p6, radon is 6s2 6p6. Atomic radii. The atomic radii of noble gases, as we move top to bottom, it increases. क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर जब हम देखते हैं तो शेल्स इंक्रीज होते हैं, और शेल्स इंक्रीज होते हैं मतलब साइज इंक्रीज हो रहा है, और इनका जो एटॉमिक रेडियाई होता है वो एक्चुअली वॉन डर वाल रेडियाई होता है. वॉन डर वाल रेडियाई इज ओनली शोन बाय इनर्ट गैसेस, जो रिएक्शन नहीं करते हैं. जो रिएक्शन नहीं करते हैं उनके लिए हम वॉन डर वाल रेडियस की बात करते हैं, यानी कि इनके ऑर्बिटल्स एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं. तो दिस इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, and half of this internuclear distance, that is bond length, is known as van der Waal radii. That is why the size of noble gases are large in their respective periods. अपने periods में सबसे बड़ा size होता है किसका? noble gases का. Boiling point. The melting point and boiling point increases as we move top to bottom. Means when we are moving from helium to radon, their melting point and boiling point increases because on moving top to bottom, atomic mass increases, and by the increasing in atomic mass, the magnitude of van der Waal force of attraction increases, because van der Waal force is directly proportional to atomic mass. जिसका atomic mass ज़्यादा होगा उसके लिए van der Waal force of attraction ज़्यादा होगा, और अगर van der Waal force of attraction ज़्यादा है तो निश्चित रूप से boiling point और melting point भी ज़्यादा होंगे जब हम ऊपर से नीचे आएंगे noble gases में. Polarizability. The polarizability increases down the group, as polarizability depend on the size. So size increases down the group, that is why polarizability increases down the group. So here is the order of the polarizability. Helium is less than neon, is less than argon, is less than krypton, is less than xenon. Radon की हम बहुत कम बात करते हैं, as radon is radioactive in nature. आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. बेटा जब मैं आपसे बात करता हूं नोबल गैसेस की तो आपको पता है इनका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबल है, यानी कि इनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है. दे हैव फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो मैंने आपसे बोला था दे नीदर वांट टू गेन इलेक्ट्रॉन, नीदर वांट टू लूज इलेक्ट्रॉन. ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं. तो ये इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, और इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम बोलते हैं कि पॉजिटिव और जीरो वैल्यू होती है. Therefore, ionization energy of noble gases is very high. On the other hand, their electron affinity is zero or positive. और एल्स हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है, मतलब नेगेटिव होती है, लेकिन नोबल गैसेस के लिए या उन सभी एलिमेंट्स के लिए जिनका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, डेट इज हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड, दे हैव जीरो और पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. हीट ऑफ वेपराइजेशन. So they possess low value of heat of vaporization because of the presence of very weak van der Waal force of attraction. हमें पता है inert gases हैं, van der Waal force of attraction पाया जाता है. van der Waal force of attraction is the weakest force of attraction. That is why their heat of vaporization is low. However,
अब मैं कंपैरिजन करना चाहता हूं कि भैया नहीं, हीलियम से जब आप रेडॉन की तरफ आ रहे हो तो क्या होगा, तो मैं बोलूंगा हाउएवर द हीट ऑफ वेपराइजेशन इंक्रीजेज विद एटॉमिक नंबर, या मैं कहूं हीट ऑफ वेपराइजेशन इंक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। फिर से वही बात, ऊपर से नीचे आने पर होगा क्या इनर्ट गैसेज में, तो मैं कहूंगा ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक मास बढ़ेगा, और एटॉमिक मास बढ़ेगा तो वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अगर वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है हीट ऑफ वेपराइजेशन भी बढ़ जाएगा। तो द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन इंक्रीजेस विद एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप एज इट शो दैट देयर is an increasing polarizability of larger electronic clouds of the element with higher atomic number. Solubility in water. So they are slightly soluble in water. Their solubility increases with increase in atomic number down the group. ऊपर से नीचे आने पर इनकी solubility बढ़ती है। Adsorption by charcoal. हीलियम को छोड़ दिया जाए क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है। बाकी सभी के सभी लो टेम्परेचर पर कोकोनट चारकोल के द्वारा एड्सॉर्ब कर लिए जाते हैं, और ऊपर से नीचे आने पर इनका एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ता है। कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा, ये अलग अलग कलर शो करते हैं और इन्हीं की वजह से हम इन्हें पहचान पाते हैं। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, तो इट इज डिफिकल्ट टू लिक्विफाई देम, क्योंकि क्या है, ये नोबल गैसेस हैं, क्योंकि इनके पास क्या है, वीक वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछा जाता है कि इनर्ट गैसेस में कंपैरिजन करो, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन क्या होगा, तो आप कहेंगे इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, मतलब जैसे जैसे मैं हीलियम से रेडॉन की तरफ आऊंगा एटॉमिक मास बढ़ेगा, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस बढ़ेगा। Helium has the lowest boiling point of any known substance. The ease in liquefaction increases down the group due to increase in the intermolecular forces, और ये intermolecular forces कौन से हैं? These intermolecular forces are van der Waals forces. ये इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है? van der Waals फोर्स है। The element helium, neon, argon, krypton, xenon and radon constitute zero group of the periodic table. Yes, we know this. These are the gases at ordinary temperature and do not have chemical reactivity. बताया था क्यों नहीं है chemical reactivity, क्योंकि इनका octet complete है, and that is why these are known as inert gases. Occurrence. Due to their inert nature, चूंकि रिएक्शन ही नहीं करते हैं तो नेचर में हमेशा फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। नेचर में हमेशा के स्टेट में पाए जाएंगे, फ्री स्टेट में पाए जाएंगे, एक्सेप्ट रेडॉन। ऑल दीज गैसेज आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इन द एटॉमिक स्टेट। रेडॉन को छोड़कर बाकी सभी एटमॉस्फेयर में अपने नेटिव स्टेट, एटॉमिक स्टेट में पाई जाती हैं। अबंडेंस हमने यहां पर दिया हुआ है, तो आप देखेंगे यहां पर सबसे ज्यादा अबंडेंस किसका दिख रहा है आपको? आर्गन का। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्गन इज द मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। आइसोलेशन की बात करें, हीलियम, इट इज कमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस। द नेचुरल गैस कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हीलियम एज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। तो हम इसे क्या कर लेते हैं? सेपरेट कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। द नेचुरल गैस इज कंप्रेस्ड टू अबाउट 100 एटमॉस्फेयर। मैंने क्या किया? इसको 100 एटमॉस्फेयर पर कंप्रेस किया, मतलब लिक्विफाई किया, एंड कूल टू 73 केल्विन। तो जो हीलियम है ना वो अनलिक्विफाइड रहेगा, बाकी सभी गैसेस क्या हो जाएंगी? लिक्विफाई हो जाएंगी। तो बाकी सभी गैस लिक्विड बन जाएंगी, हीलियम गैसेस के फॉर्म में ही रहेगा, तो हम बड़े आराम से हीलियम को सेपरेट आउट कर सकते हैं। Argon, neon, krypton and xenon, these gases are prepared by the fractional distillation of liquefied air. हो क्या रहा है? इन सबके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। अब आपने क्या किया भैया, जब इसे कंप्रेस किया तो आप फिर से क्या देखोगे कि O2 और N2 तो लिक्विफाई हो जाएंगे, लेकिन जब मैं बात करूंगा आर्गन की, नियॉन की, क्रिप्टन की और xenon की, तो ये लिक्विफाई नहीं होंगे, और जब ये लिक्विफाई नहीं होंगे तो हम आसानी से इन्हें सेपरेट कर लेंगे। The individual gases may be obtained by the adsorption of air on coconut charcoal. The coconut charcoal adsorb different gases at different temperature, so these gases can be collected easily. रेडॉन की बात करें
तो इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियम। जब आप रेडियम को डिसइंटीग्रेट करते हो तो ये अल्फा पार्टिकल रिलीज करता है, और अल्फा पार्टिकल के रिलीज करने के साथ ये रेडॉन का फॉर्मेशन करता है। कंपाउंड ऑफ जिनॉन। जिनॉन के कंपाउंड की अगर मैं आपसे बात करूं तो जिनॉन चूंकि इनर्ट है फिर भी कंपाउंड बना रहा है, इनर्ट है फिर भी कंपाउंड बना रहा है, क्यों? उसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। 1962 में बार्टलेट ने नोटिस किया कि प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड PTF6 एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छी बात है, सही बात है। विच कंबाइन विद मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड डाइऑक्सीजन हेक्साफ्लोराइड प्लैटिनेट 4। This is the compound. This indicate that PTF6 has oxidized O2 to O2+. याद रखना है कि वो जो कंपाउंड बन रहा है ना, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। ये हमसे पूछ लिया जाता है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 किस कंपाउंड में, तो हम बोलेंगे O2 PTF6 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। This indicate that PTF6 have oxidized oxygen to O2+. Now oxygen and xenon have some similarities. दोनों में कुछ समानताएं हैं, कुछ सिमिलरिटीज हैं। तो जैसा काम ऑक्सीजन कर रहा है, हमने ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया है किससे? जिनॉन से, बिकॉज ऑफ द सम सिमिलर प्रॉपर्टीज, सम रिजेम्बलेंस। देखें क्या है वो। द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिनॉन गैस। जिनॉन का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कितना है? 1170 किलो जूल। और ऑक्सीजन का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? 1166 किलो जूल। लगभग क्या है? बराबर है। और लगभग बराबर हैं तो हम बोलेंगे भैया आयनाइजेशन एनर्जी अगर लगभग बराबर है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या होगी? बराबर होगी। The molecular diameter of oxygen and atomic radius of xenon are similar approximately, that is 4 angstrom। और इसी assumption पर बार्टलेट ने क्या किया? ऑक्सीजन और PTF6 की जो रिएक्शन कराई थी, ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया किससे? जिनॉन से। जिनॉन और PTF6 की रिएक्शन हुई, और जिनॉन और PTF6 की रिएक्शन हुई तो मुझे मिला XePTF6। देखें जरा, जिनॉन ने PTF6 के साथ रिएक्शन किया, मुझे मिला Xe प्लस PTF6 माइनस, एंड दिस इज एन ऑरेंज येलो कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड है? ऑरेंज येलो कंपाउंड है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिनॉन के क्या हैं? अगर मैं जिनॉन के फ्लोराइड्स की बात करूं तो जिनॉन 3 फ्लोराइड्स फॉर्म करता है बेटे, डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड और हेक्साफ्लोराइड। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसने XeF2 का फॉर्मेशन किया है, +4 में XeF4 जो टेट्राफ्लोराइड है, साथ में ऑक्सीफ्लोराइड भी बनाया है XeOF2, +6 में इसने हेक्साफ्लोराइड बनाया है, साथ में ऑक्साइड बनाया है XeO3, और साथ में बनाया है ऑक्सीफ्लोराइड फिर से XeOF4। इन जनरल जब मैं नीट और मेंस के सिलेबस में बात करता हूं तो XeF2, XeF4 और XeF6 पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन पर भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटे वो इनके हाइड्रोलिसिस पर बेस्ड होते हैं। हालांकि हम इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी नोटिस करेंगे। फ्लोराइड्स की बात करते हैं, तो जैसा मैंने आपसे बोला था जिनॉन 3 ही फ्लोराइड बनाता है। कौन कौन से 3 फ्लोराइड है? जिनॉन डाइफ्लोराइड, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड और जिनॉन हेक्साफ्लोराइड। Xenon difluoride XeF2 is formed when a mixture of xenon and fluorine are in the ratio of 1:2 by volume. Is passed through a nickel tube at 673 Kelvin. तो xenon ने फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करी, इट इज F2, तो हमें बनाकर दिया XeF2 that is xenon difluoride। स्ट्रक्चर XeF2 की अगर मैं बात करता हूं बेटा तो XeF2 का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3d, और इस हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इसकी ज्योमेट्री होगी ट्रायगोनल बायपिरामिडल। बट ज्योमेट्री इज ट्रायगोनल बायपिरामिडल,
The actual shape, the actual structure is linear as XeF2 has 2 bond pairs and 3 lone pairs. तो देखें जरा, trigonal bipyramidal geometry due to sp3 dehybridization of xenon, 3 equatorial positions are occupied by lone pair of electrons giving a linear shape to the molecule. ये देखिए, जब मैं आपसे xenon की बात करता हूं तो ध्यान दीजिएगा बेटा, मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन में जब मैं आपसे बात करता हूं स्ट्रक्चर की तो वो होती है ट्रायगोनल बायपिरामिडल. अब ये ट्रायगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर ही है, इसमें से ये वाली जो पोजीशन है, ये पोजीशन होती है बेटे एक्सियल पोजीशन. ये चीज समझ लो, बड़े काम आएगी. बेंट रूल है ये. sp3d वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर हम इससे बड़ी आसानी से बता सकते हैं. और ये वाली जो पोजीशंस होती हैं बेटे, ये पोजीशंस होती हैं इक्वेटोरियल पोजीशन. ये कौन सी पोजीशन है? इक्वेटोरियल पोजीशन. अब मुझसे कहा गया आपके पास है मॉलिक्यूल XeF2, उसका स्ट्रक्चर बताओ. तो बेटा अगर सेंट्रल एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच्ड है, जैसे xenon से फ्लोरीन अटैच्ड है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वी हैव नोन, तो हम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को सबसे पहले कहां पर रखेंगे? सबसे पहले रखेंगे एक्सियल पोजीशन पर, और बचे हुए को फिर हम इक्वेटोरियल पोजीशन पर अरेंज कर देंगे. अब बचे हुए वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और लोन पेयर भी हो सकते हैं. यहां पर xenon के साथ कितने एटम, कितने फ्लोरीन अटैच्ड है? 2. तो मैं इन दोनों फ्लोरीन्स को यहां पर रख दूंगा. क्या इसके अलावा अब और कोई एटम है? नहीं है. नहीं है तो बचे हुए लोन पेयर्स को मैं इस पोजीशन पर रखूंगा. तो फाइनली आप देखोगे जो स्ट्रक्चर मेरे पास आएगी, वो स्ट्रक्चर ही आएगी. इसीलिए XeF2 क्या होता है? लीनियर होता है. Properties. XeF2 is a colorless crystalline solid. When it reacts with hydrogen to give Xe and HF, it is hydrolyzed completely by water. So this is the most important reaction which we have to learn. XeF2 की रिएक्शन जब मैंने वाटर के साथ कराई तो xenon मिला, ऑक्सीजन मिला और साथ में मिला HF. याद रखिएगा HF इज द कॉमन प्रोडक्ट. xenon का कोई भी फ्लोराइड हो, चाहे डाई, चाहे टेट्रा, चाहे हेक्सा, HF तो बनेगा ही बनेगा. और xenon का कोई भी फ्लोराइड हो, चाहे डाई, चाहे ट्राई, चाहे टेट्रा, लिक्विड HF इन तीनों के लिए एक अच्छा सॉल्वेंट भी होता है. लिक्विड HF इज अ बेटर सॉल्वेंट for all the 3 fluorides of xenon. It also form addition compound with reactive pentafluorides like SbF5, TAF5. मैं आपसे बात करूंगा with Lewis acids. मैं कहूंगा पेंटाफ्लोराइड मत बोलो, आप इसको क्या बोल दो? लुइस एसिड बोलो. तो इसने क्या किया जी? एडिशन कंपाउंड बना दिया. It is a mild fluorinating agent and hence react with benzene to give fluorobenzene. अब मैं आ गया xenon टेट्राफ्लोराइड पर. उससे पहले यहां हमने इसका पोजीशन दिया हुआ है, इट इज स्क्वायर प्लेनर. स्ट्रक्चर ऑफ XeF4 इज स्क्वायर प्लेनर. xenon टेट्राफ्लोराइड. अब ये कैसे फॉर्म हो रहा है? xenon की रिएक्शन फ्लोरीन से ही कराऊंगा, लेकिन पहले रेशो था 1:2, अब रेशो होगा 1:5. वही निकल का अलॉय मोनल मेटल में हम इसे गर्म करेंगे. देखें जरा XeF2 की रिएक्शन जब बेटा मैंने किससे कराई है? फ्लोरीन से. मुझे क्या मिला? XeF4. अब यहां पर एक बात जो बहुत ध्यान देने वाली है, वो बात यह है कि इस रिएक्शन में XeF4 के अलावा स्मॉल अमाउंट में XeF2 और XeF6 भी बनता है. स्मॉल अमाउंट में क्या बनता है? XeF2 बनता है और XeF6 बनता है. ठीक है, अच्छी बात है भैया. अब सर इसको कैसे हटाऊं? ये तो मिक्सचर है और आप मुझसे क्या बनवा रहे हो? XeF4. मैं कहूंगा ये है इंटेलिजेंट क्वेश्चन. तो अब इस मिक्सचर से
HCF4 थ्रू सब्लिमेशन हम सेपरेट करते हैं। मतलब HCF4 जो है वो सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, यानी कि सब्लिमाइज्ड हो जाता है, और सब्लिमाइज्ड होने का मतलब है सॉलिड स्टेट से सीधे गैसियस स्टेट को अचीव कर लेता है। तो HCF2, HCF4 और HCF6 इन तीनों ही कंपाउंड में HCF4 वो कंपाउंड है जो सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन में HCF4 के अलावा और क्या क्या बनता है, HCF2 और HCF6। HCF4 स्क्वायर प्लेनर शेप ड्यू टू sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, जिनॉन की ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, लेकिन चूंकि जिनॉन के पास दो लोन पेयर भी हैं साथ साथ, तो ये स्क्वायर प्लेनर शेप जो है वो बनाता है, जिसे मैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप कह सकता हूं। HCF4 is a colorless crystalline solid. It is soluble in anhydrous HF react with hydrogen to form xenon, and HF react with water to give highly explosive solid XeO3. XeO3 is a white solid. कलर तो याद रख ही सकते हैं। देखिए HCF4 की रिएक्शन जब मैं वाटर से कराता हूं तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि ये तो बनता ही बनता है, और यहां साथ में और क्या बन रहा है, XeO3 बन रहा है, विच इज एक्सप्लोसिव। क्या है, एक्सप्लोसिव है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस यील्ड XeOF2। तो HCF4 का जब मैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराता हूं तो मुझे मिलता है XeOF2, लेकिन देख लो फिर से हाइड्रोलिसिस हुआ है तो HF तो बनेगा। इसका मतलब क्या है कि जब भी मैं इन कंपाउंड के हाइड्रोलिसिस की बात करूंगा ना, तो मुझे HF को याद रखने की जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में ये चीज चलती रहनी चाहिए कि HF तो बाय डिफॉल्ट बनेगा, इससे मुझे कम याद करना पड़ेगा। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ HCF4 गिव्स व्हाट, XeO3। पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ HCF4 गिव्स व्हाट, XeOF2। भैया HF तो कंप्लीट में भी बनेगा और पार्शियल में भी बनेगा। ये भी क्या है, एडिशन कंपाउंड बना रहा है। SbF5 की रिएक्शन में HCF4 के साथ करा रहा हूं तो मुझे XeF3 प्लस और SbF6 माइनस मिलेगा, और ये भी एक अच्छा फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। अब मैं आ गया बेटा जिनॉन हेक्साफ्लोराइड पर। सेम जिनॉन की रिएक्शन फ्लोरीन से कराऊंगा, मोनल मेटल वाले अलॉय में कराऊंगा, लेकिन अब जो रेशो होगा वो होगा 1:20। 1:20। तो हमने लिया HCF2 1:20 का रेशो लिया, हमें मिल गया हेक्साफ्लोराइड। स्ट्रक्चर हेक्साफ्लोराइड की बात करूं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d3, पेंटागनल बायपिरामिडल। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, देखना जरा, sp3d3 की वजह से। तो इसकी जो शेप आ जाती है वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप आ जाती है। HF की रिएक्शन HCF6 से कराई तो मुझे मिला HCF5 प्लस और HF2 माइनस। ये भी कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, हाईली सॉल्युबल इन एनहाइड्रस HF। अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने आपसे कहा था कि HF जो है वो इन तीनों फ्लोराइड्स के लिए, वेदर इट इज डाइफ्लोराइड और इट इज टेट्राफ्लोराइड और इट इज हेक्साफ्लोराइड, HF is a better solvent for all three, सभी तीनों के लिए, which is a good conductor of electricity। तो देखो HF की रिएक्शन HCF6 के साथ कराई है, तो यहां पर क्या हुआ, इसने अपना फ्लोरीन इसको डोनेट कर दिया, क्या बना, HF2 माइनस और साथ में HCF5 प्लस। It is the most powerful fluorinating agent and react with hydrogen to give Xe and HF. Partial hydrolysis of HCF6 produce XeOF4 and complete produce XeO3। देखिए HCF6 की रिएक्शन में किससे करा रहा हूं, वाटर से। दिस इज द केस ऑफ पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस के केस में क्या बन रहा है, XeOF4। देखो फिर से देख लो, बार बार एक ही चीज को मैं नोटिस करने के लिए कह रहा हूं कि HF तो बनेगा, बोनस है।
ये तो मिलेगा ही मिलेगा। ये वो रायता है जो आपको फ्री में मिल रहा है जब भी आप H2O के साथ रिएक्शन करा रहे हो। और ये है बेटा कंप्लीट। और यहां पर भी आप देख लीजिए XCO3 के साथ क्या मिला, HF। मतलब HF इज द कॉमन प्रोडक्ट इन ऑल द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ऑफ xenon fluorides, whether it is di or it is tetra or it is hexa. It form addition compound with alkali metal fluoride except lithium fluoride of the formula XeF6MF, where M represent the alkali metals. ऑक्साइड्स की बात कर लेते हैं। तो जिनॉन दो ऑक्साइड्स बनाता है, कौन कौन से, ट्राईऑक्साइड्स और टेट्रा ऑक्साइड, XeO3 और XeO4। Xenon trioxide is prepared by the complete hydrolysis of XeF4 and XeF6, which we have discussed earlier in XeF4 and XeF6. XeF4 12H2O gives us what, XeO3 and Xe. XeF6 plus 3H2O gives us what, XeO3. स्ट्रक्चर, XeO3 का टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है और इसका शेप है पिरामिडल। देख लें जरा कैसे। Xenon, double bond oxygen, double bond oxygen, double bond oxygen and a lone pair. So we have 3 bond pair and 1 lone pair. Because of the presence of these 3 bond pair and 1 lone pair, it is sp3 hybridized having pyramidal shape. Geometry is tetrahedral as it is sp3 hybridized. It is a colorless solid, highly explosive and powerful oxidizing agent. XeO3 का ध्यान रखना है कि भैया ये विस्फोटक है, फट जाता है बहुत जल्दी। Xenon टेट्रा ऑक्साइड्स की बात कर लेता हूं। XeO4 कैसे प्रिपेयर होता है, जब मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और सोडियम और बेरियम जेनेट की रिएक्शन कराता हूं रूम टेम्परेचर, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ये देखिए, सोडियम जेनेट और बेरियम जेनेट की रिएक्शन हमने H2SO4 के साथ कराई है, तो हमें क्या मिल रहा है, ये एक कंपाउंड नहीं है, XeO4 एंड XeF4। XeO4 is purified by vacuum sublimation at 195 Kelvin. स्ट्रक्चर, XeF4 की बात कर लूं जरा। XeO4 Xenon डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो वी हैव 4 bond pair, that is 4 sigma bonds, 0 lone pair. So it is again sp3 hybridized but tetrahedral geometry or tetrahedral shape. Property, it is a quite unstable gas and decomposes to xenon and oxygen like this. XeF4 dissociate to give Xe and O2. ऑक्सीफ्लोराइड्स की बात करें तो Xenon 3 प्रकार के ऑक्सीफ्लोराइड्स बनाता है। कौन कौन से, Xenon ऑक्सी डाइफ्लोराइड, Xenon ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड एंड Xenon ऑक्सी डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड। Xenon ऑक्सी डाइफ्लोराइड XeOF2 is formed by the partial hydrolysis of XeO4 which we have discussed earlier in the hydrolysis of XeF4। देखिए XeF4 H2O के साथ रिएक्शन कर रहा है, क्या बना रहा है, XeOF2। बेटा ये जो चैप्टर है नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, इसमें मैक्सिमम चीजें जो हैं वो आपको लर्न करनी है। मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शंस हैं। स्ट्रक्चर, XeOF2 की ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री है एज इट इज sp3d हाइब्रिडाइज्ड। Xenon oxy tetrafluoride XeOF4 is prepared by the partial hydrolysis of XeF6। देखिए XeF6 ने हाइड्रोलिसिस किया, क्या बना, XeOF4। ये भी हमने अभी पहले डिस्कस किया है। It can also be prepared by the reaction of silica SiO2 with XeF6. So when XeF6 react with silica, that is SiO2, XeOF4 is formed. स्ट्रक्चर, XeO4 की बात करूं तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। लोन पेयर का पोजीशंस मैं आपको बता चुका हूं। प्रॉपर्टी, कलरलेस वोलाटाइल लिक्विड है, इसे ध्यान में रखना। विच मेल्ट्स एट 227 केल्विन। XeO3 की रिएक्शन जब हमने कराई है वाटर के साथ, XeOF4 की रिएक्शन जब वाटर के साथ कराई है तो क्या बना है, XeO2 और XeO3 reduced by hydrogen to xenon।
बच्चों अब बात करते हैं xenon डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड दैट इज XeO2F2। तो बेटा इट इज फॉर्म बाय द पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ XeOF4 एंड XeF6, जिसमें ये वाली रिएक्शन अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की है बेटे, और ये वाली रिएक्शन है XeOF4 की रिएक्शन। जब वाटर से कराता हूं तो मुझे मिलता है xenon डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड। It can also be prepared by the mixing of XeO3 and XeOF4 at low temperature. The product is purified by the fractional distillation. XeO3 plus XeOF4 gives us XeO2F2. Structure XeO2F2 में अगर मैं बात करूं तो इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, यानी कि इसकी ज्योमेट्री तो ट्रायगोनल बायपिरामिडल होगी, लेकिन इसकी शेप जो होगी बेटा वो सीसॉ होगी because of the presence of lone pair of electrons. Property: it is a colorless solid which melts at 303 Kelvin, easily hydrolyzed to give XeO3. So this is also the hydrolysis reaction. xenon के कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस जो हैं वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजेस ऑफ नोबल गैसेस, द लास्ट पॉइंट जो हम अब डिस्कस कर रहे हैं। हीलियम इज यूज्ड फॉर फिलिंग ऑफ बलून्स एंड एयरशिप्स बिकॉज ऑफ इट्स नॉन इनफ्लेमेबिलिटी एंड हाई पावर विच इज 92.6% टू डेट ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हीलियम का 1:4 मिक्सचर इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा एंड फॉर द आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन in deep sea divers, because unlike nitrogen, helium is not soluble in blood even under high pressure. Helium is also used for creating inert atmosphere in the chemical reactions. Liquid helium is used as cryogenic fluid. The word cryogenic is related to freezing. Produce and maintain extremely low temperature for carrying out researches and as a coolant in atomic reactors and superconducting magnets. कूलेंट्स जो होते हैं, जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं ना, वो वाटर से भी कूल होते हैं और गैस कूल्ड रिएक्टर्स भी होते हैं। तो जो वाटर कूलिंग रिएक्टेंट्स जो रिएक्टर्स होते हैं उसमें हम क्या करते हैं बेटा, उसमें हम यूज करते हैं हैवी वाटर D2O। लेकिन जो गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उसमें हम हीलियम का यूज करते हैं एज इट हैज क्रायोजेनिक प्रॉपर्टीज। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन लो टेम्परेचर गैस थर्मामीट्री एंड एज अ शील्ड गैस फॉर आर्क वेल्डिंग। Argon is used for creating inert atmosphere in the chemical reaction, welding and metallurgical operations, and for filling the fluorescent lamps. It is also used in filling Geiger counter tubes and thermionic tubes. Krypton and xenon are also used in gas-filled lamps. A mixture of krypton and xenon is also used in flash tubes for high-speed photography. Radon is used in radioactive research and therapies in the non-surgical treatment of cancer and other malignant growth. ये याद रखिएगा, ये पूछ लेता है हमसे, है ना। So this is all about the P block element. Thank you so much.